we are going to talk about 7 steps which will help you in healing from your past. So let's start. The first one is acknowledge and accept your past. I know what you're trying to get over from is not a very happy part of the past. But किसी के भी past में ना happy and sad दोनों type की चीज़ें होती हैं. It's not like आपके साथ हमेशा बुरा ही हुआ होगा past में. You must have had your own share of highs and lows. You must have had your share of happiness and sad moments. But right now what you're trying to heal from is maybe probably your sad parts of your past. So first of all, acknowledge and accept that your past was not only sad. While it was sad, but it was not only sad. You had your ups and downs, and you were also happy in some parts of those past moments. Sometimes we get so deep into thinking about all the bad moments that we fail to acknowledge कि हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी. So we must see the entire picture as a whole. एंड देन ऑल्सो कंसिडर कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा हुआ था एंड मेरे साथ ये जो हुआ था ये अच्छा नहीं हुआ था. आई डिड नॉट लाइक इट. नाउ सिंस वी आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम द सैड पार्ट ऑफ इट, नाउ लेट्स ब्रिंग आवर अटेंशन टू वॉट एवर हैपन विच वॉज not very nice or which caused you a lot of pain or heartbreak. So now let's acknowledge whatever happened in those moments that is making you sad right now. So उस टाइम पे क्या हुआ था? Think about it. Think about everything that happened. However sad it might make you feel, but think about it for once. Because once you recap everything कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, you at least bring your mind to the alignment कि okay, this has happened with me. काफ़ी बार क्या होता है हम चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. Like नहीं, I don't want to talk about it, I don't want to discuss it. But if you don't talk about it, you will never be able to come out of it. So sometimes you need to accept. You need to think about it one more time properly. Now the second point is related to the first point. The second point is reflect and learn. Now once you have recalled everything and now once you know कि exactly क्या हुआ था and what part of it made you sad, now that you are aware of that, अब उस situation में जो भी हुआ था उससे आपकी क्या learnings है? What are your reflections from that? Was there something that you did wrong or was there something that the other person did wrong? ये जो हम healing की बात कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक relationship से ही healing हो. It could be friendship, it could be relationship with your parents, or it could be a situation, it could be like you wanted to get into a good university but you couldn't. कोई भी situation से अगर आपको heal करना है तो मैं उसका process आपको एक generic process बता रही हूँ. So second thing like I said is you need to reflect and learn from it. For example, you couldn't score good marks in your exam. I was so disappointed after my CAT exam. I was preparing so hard for it, but मेरा CAT का exam ना बहुत बुरा गया था. Like बहुत बुरा नहीं गया था, but जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं गया था. And I came home and I was so sad. That was one of the lowest moments of my life. उस टाइम पे आपको लगता है कि क्यों नहीं हुआ. So similarly, if you're having an experience if you're trying to heal from, a failed exam or anything, or be it relationships, if you're trying to heal from it, think कि क्या exactly हुआ था जिसकी वजह से शायद it didn't work out. अगर relationship से आपका break हुआ तो उसमें सोचो कि exactly, क्या हुआ था? Whose fault was it? Could I have done something better? Or could that person have done something better? क्या वो इंसान ही कुछ अलग कर सकता था जिससे कि हमारा रिलेशनशिप आज भी चलता? या मेरी ही गलती थी, या सिचुएशन की गलती थी, टाइमिंग की गलती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. So just think about it. You need to understand that your scars are a part of who you are. It's all right. All of us have it. The first step to liberation or healing is to not avoid but accept that okay, I have this scar, okay, I've been through it. In fact, that makes you so beautiful. Accept that you are scarred but you will heal from it. You'll feel bad but accept it. Like think about it. Avoid मत करो उस चीज़ को. Don't avoid thinking about it कि नहीं मुझे सोचना ही नहीं है. Think about it and then अपनी गलतियों के बारे में सोचो. जो भी situations में जो भी हुआ था उसके बारे में सोचो and टेक लर्निंग्स फ्रॉम इट कि क्या आपको आगे जाके नहीं करना है एंड क्या चीज़ें आपको आप सही थे एंड आप वही करते रहोगे. दिस इज़ हु यू आर एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डिड लास्ट टाइम. यू लाइक नहीं ये तो मेरे वैल्यूज़ हैं, इस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो ये चीज़ तो मैं करूँगा ही.
बट हाँ, ये चीज़ जो हुई थी वो शायद मैं कुछ अलग कर सकता था, लाइक मे बी दैट थिंग आई डिड वॉज रॉन्ग. नंबर 3, लेट गो एंड फॉरगिव. जो भी हुआ था, आई एम श्योर उसमें सिचुएशन की भी कुछ गलती रही होगी, सामने वाले की भी कुछ गलती रही होगी. इट्स नॉट लाइक आपका ही फॉल्ट होगा पूरा, राइट. एंड अगर सामने वाले के साइड से गलती रही होगी तो आपको ज़रूर उनके लिए एक गुस्सा, एंग्स्ट होगा आपके अंदर कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब तो मैं इससे बदला ले लूँगा या बदला ले लूँगी, या उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा लाइफ में. आप एक ग्रज होल्ड करते हो अपने अंदर बहुत टाइम तक, अब चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो. आई फील दिस इज लाइक ह्यूमन नेचर. Whenever something bad happens to us, especially because of some person, you have this grudge in your mind कि नहीं, I'll show this person. So you have to start learning to let go and forgive. अब ये भी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, इतना ईजी नहीं है बोल दिया और लेट गो हो गया, फॉरगिव हो गया. नहीं, इट्स नॉट ईजी, इट्स नथिंग इज ईजी. बट यू हैव टू स्टार्ट ट्राइंग टू डू इट. तभी तो होगा. अगर आप कभी सोचोगे ही नहीं, करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो क्यों होगा. बहुत लोग तो इसी डिनाइल में रहते हैं कि नहीं, मुझे फॉरगिव ही नहीं करना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आई कैन नेवर फॉरगिव देम. बट इस थॉट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, जो मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुआ था. यू आर ओनली हर्टिंग योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस. आपको लगता है कि आप ग्रज होल्ड करके सामने वाले को बहुत हर्ट कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं होता. सामने वाले को जिसको जाना था ना, वो चला गया. दे आर लिविंग देयर नॉर्मल हैप्पी लाइफ नाउ, एंड इट्स ओनली यू हु इज़ फेसिंग एवरीथिंग. तो आप ही हर्ट हो रहे हो पूरे प्रोसेस में. सो लिसन टू दिस कोट दैट आई हर्ड समवेयर. इट सेड दैट होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट समवन इज़ लाइक होल्डिंग अ बर्निंग कोल इन योर हैंड. अपने हाथ में एक बर्निंग कोल को अगर आप पकड़ोगे, आप सोचते हो कि आप वो सामने वाले पे फेंकोगे एंड उसको बहुत हर्ट होगा. बट आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हो वो ये है कि बर्निंग कोल आपके हाथ में है. सो यू आर हर्टिंग योर सेल्फ द मोस्ट इन दिस प्रोसेस. एंड आप जितने लंबे टाइम तक वो बर्निंग कोल को अपने हाथ में पकड़े रहोगे ना, आपका हाथ जलता रहेगा एंड यू विल कीप हर्टिंग योर सेल्फ. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हील, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब मुझे हील करना है, एंड आई एम श्योर यू हैव डन दैट, दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट गो ऑफ दैट बर्निंग कोल. वो जलते कोल को छोड़ दो अपने हाथ से. लेट गो ऑफ दैट एंगर, दैट रिवेंज एंड वो बदले की भावना जिसको कहते हैं, वो सब छोड़ दो, जाने दो. लेट ड्रॉप दैट कोल. बिकॉज एक बार आप उसको ड्रॉप करोगे ना, तभी आप अपनी हीलिंग जर्नी में एक स्टेप आगे ले पाओगे. यू टेक अ स्टेप क्लोजर टू हीलिंग once you learn to let go and forgive. Now the fourth point is self compassion. अब ये पूरे प्रोसेस में जब हम अपने आप को इतना हर्ट करते हैं, अपने आप के बारे में इतना सोचते हैं कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, हम ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, दिस दैट. नाउ इट्स टाइम फॉर सेल्फ कंपैशन. आपको अपने खुद के लिए कंपैशनेट बनना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है, तो आप उनको कैसे कंसोल करते हो कि इट्स ओके, यू विल फाइंड समवन बेटर, मे बी दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू, यू हैव बेटर थिंग्स इन लाइफ, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, यू हैव दिस, यू हैव दैट. आप ऐसे कंसोल करते हो ना अपने फ्रेंड को. सिमिलरली यू हैव टू बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड. यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, एंड मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी एंड दैट इज़ वाई दिस डिडंट वर्क आउट. यू हैव टू कंसोल योर सेल्फ लाइक अ फ्रेंड. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई और आके आपको ऐसी चीज़ें बोलेगा, एंड आपको ही पता है कि आपको क्या सुन के अच्छा फील होगा. सो यू हैव टू बी योर ओन फ्रेंड एंड यू हैव टू लर्न टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ. एक बहुत ही फेमस कोट है जो मैं बताती हूँ आपको. इट सेज दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन लाइन. यू रियली हैव टू लव योर सेल्फ टू गेट एनीथिंग डन इन दिस वर्ल्ड. अगर आपको इस वर्ल्ड में कुछ भी करना है ना, तो you have to start by loving yourself. So अगर आप खुद के लिए ही इतना गुस्सा रखोगे या खुद के लिए केयर नहीं करोगे, खुद के लिए कंपैशन नहीं शो करोगे, तो आप दुखी ही होते जाओगे. यू विल गेट इनटू दैट साइकिल ऑफ नेगेटिविटी एंड सैडनेस, एंड आप दुखी रहोगे क्योंकि नो वन इज़ कमिंग टू कंसोल यू एंड यू आर ऑल्सो नॉट देयर फॉर योर सेल्फ. सो इट्स ओनली गोइंग टू गो spiral downwards. Now the fifth step is release all your regrets, focus on your present and remember who you were. आप इस रिलेशनशिप में आने से पहले कैसे थे, आप वो एग्ज़ाम देने से पहले कैसे थे, आप जो भी आपके साथ हुआ उस मिसहैप होने से पहले आप कैसे थे. ट्राई टू कनेक्ट विद दैट साइड ऑफ योर सेल्फ.
पहले आप कैसे थे? पहले भी तो खुश थे ना, तभी तो आपको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं थी खुश रहने के लिए. You were a happy person, but because of all these things now you are sad at the moment. So try to remember उस टाइम पे आपके क्या likes थे, क्या desires थे, what used to make you happy at that moment. आपके क्या favorite shows थे, आपको क्या करना पसंद था. For me, whenever I feel very low, I start watching Friends, because Friends is something that I have watched as a kid. सो जब भी मैं वापस से फ्रेंड्स देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं उसी टाइम पे चले गई हूँ. दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी फ्रॉम विद इन. आपकी लाइफ में भी कुछ ज़रूर होगा जो कि आप पहले करते थे एंड आप खुश रहते थे करके. तो मैं जब बचपन में फ्रेंड्स देखती थी मैं खुश रहती थी देख के. तो अभी भी मैं देखती हूँ तो आई गेट बैक टू दैट साइड ऑफ माई सेल्फ. सो यू नीड टू गेट बैक टू डूइंग दोज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है कि आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था एज अ किड. मे बी यू लव्ड वॉचिंग क्रिकेट. सो डू दैट नाउ एंड ट्राई टू बी हैप्पी. यू विल हैव टू लर्न टू बी हैप्पी अगेन. यू विल हैव टू train your mind to be happy in this situation, in the current situation. Instead of seeking what's not there or what's gone, you need to embrace the present moment. Now you have to figure out ways कि आप इस present moment में कैसे खुश रह सकते हो. शायद आपको सोलो ट्रिप में जाने में खुशी मिले, शायद आपको कुछ ऐसा एडवेंचर करने में खुशी मिले, शायद स्ट्रेंजर्स के साथ आपको हैंग आउट करने में खुशी मिले, कुछ रैंडम करने में खुशी मिले, शायद आपको यूट्यूब वीडियो बनाने में खुशी मिले. Maybe start your YouTube channel. Maybe do something, just for yourself, just to make you happy. When I started this YouTube channel, I was also at a little low phase in my life. I was, in Chennai. I was not very happy about being placed in Chennai. I was not doing very good in my life, like mentally. So, when I started this channel, it gave me a lot. बट उस टाइम पे what it gave me is, आपके पास एक हुक है बट आपको कहीं उसको फंसाना है. आपकी हुक जो है वो एक रोप पे टाइड है, आप उसको ऐसे बार बार फेंक रहे हो कि कहीं तो फंस जाए. सो मेरे लिए मेरा यूट्यूब चैनल वो था. आई वॉज एमलेसली ट्राइंग कि मैं क्या करूँ कि मैं खुश हो जाऊँ. लाइक वॉट विल मेक मी फील complete and full. And then it got stuck on this thing. I always knew that I was a creative child, but I didn't know कि मुझे ये चीज़ करने से वो फुलफिल होगी. So when this happened, then I started putting all my creativity into creating these YouTube videos, and it became a thing for me, and it still is. Like, this is my thing. It makes me happy. So find your thing that will make you happy and that will keep you going despite everything. कुछ भी हो जाए आपके साथ, but have that thing जिस पे कि आप अपने हुक को फंसा सको and वापस अपने आप को खुशी की तरफ ले आ पाओ. Wow, I'm so proud of myself for giving that example, because I did not write it in my script. I just thought about it, the hook thing, right? But it makes so much sense if you think about it, right? Yeah, so find that thing. इस पे मेरे को एक दलाई लामा का बहुत प्यारा कोट याद आ गया, which says, "The purpose of life is to be happy." बहुत ही छोटा कोट है, but कितना मीनिंगफुल है कि हमारी लाइफ का जो पर्पस है ना, वही है to be happy. So let's try to be that, है ना? Now the sixth and the last point is practice mindfulness. Now if you have been following my channel, मैं हर वीडियो में ये I think एक पॉइंट ज़रूर बोलती हूँ. And although it sounds very old school, it sounds very boring, very blah, mindfulness and meditation can work wonders for you. If you're mentally not doing very well, meditation and mindfulness can change the game for you. कुछ नहीं करना है. मेडिटेशन इतना हैवी टर्म है, बट राइट आफ्टर यू वेक अप और राइट बिफोर यू स्लीप, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट लेट योर थॉट्स फ्लो. अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं ना, उनको बस फ्लो करने दो. सी कि क्या थॉट्स आ रहे हैं. जस्ट बी अवेयर कि हाँ ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग. आज सुबह जो हुआ, आज ये खाना खाया, कुछ भी आपके थॉट्स आ सकते हैं. लेट इट फ्लो. आप बस बैठो आँख बंद करके, कुछ सोचो मत इंटेंशनली, बट जो भी थॉट आए उसको रियलाइज़ करो कि अच्छा अभी मेरे दिमाग में ये थॉट आया, अभी मेरे दिमाग में ये थॉट आया. पता है ये सुनने में इतना ईजी लगता है, बट ये करना इतना डिफ़िकल्ट है. क्योंकि क्या होता है, एक बार एक थॉट आता है, फिर आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, फिर दूसरा थॉट आता है, फिर आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो. नहीं, आपको सोचना नहीं है, आपको बस एक्सेप्ट करना है कि ओके ये थॉट आया, ये थॉट आया, अभी ये थॉट आया. ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, कि आपकी ब्रेथ कैसे जा रही है आपके नॉस्ट्रिल के अंदर. फीलिंग दैट एयर जो जा रहा है, आपके लंग्स को एक्सपैंड कर रहा है, आपके बॉडी में जा रहा है, आपके वेन्स में जा रहा है, इट्स गोइंग एवरीवेयर. जस्ट फीलिंग ऑल दीज थिंग्स. देर आर मैनी गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल ऑन
यूट्यूब, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे करना है तो यूट्यूब में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं जिसको देख के कि आप कर सकते हो ये चीज़. बट अगर आपको उतना हाई लेवल नहीं जाना है, देन दिस इज़ अ बेसिक थिंग दैट यू कैन डू. इट गिव्स यू सो मच पीस. सो व्हेन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, आप ना प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहते हो. बट यूजुअली क्या होता है हमारे साथ, हम हमेशा पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं कि आगे क्या होगा, या फिर वी थिंक कि क्या हुआ था. हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, दो चीज़ें. बट जो प्रेजेंट है, सामने जो चीज़ें हैं, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, इस टाइम पे मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं आना चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग माइंडफुल. मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे माइंडफुल होना है विद द हेल्प ऑफ योर 5 सेंसेस. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. आई ऐड द लिंक समवेयर ऑन द टॉप. आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो ना, एंड व्हेन यू मेडिटेट रेगुलरली, इट हेल्प्स यू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. जैसी भी आपकी लाइफ या जैसी भी सिचुएशंस चल रही हैं लाइफ की, इट विल हेल्प यू एक्सेप्ट इट. You know, I also try a lot of things and I fail at a lot of things. I give my 200% but I get 1%. मेरे साथ भी ऐसा होता है. लोग मुझे बोलते हैं आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो. मैं पॉजिटिव ऐसे ही नहीं रहती, ये सब करती हूँ इसीलिए पॉजिटिव रहती हूँ. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई वन बोनस पॉइंट, दैट इज़ बिलीव इन अ हायर पावर. नाउ आई नो बहुत लोग भगवान में भी नहीं विश्वास करते हैं शायद, एंड बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे ही कुछ है. बट आई पर्सनली बिलीव अ लॉट इन गॉड, एंड I believe in the higher power. I believe कि there is someone who is, you know, controlling everything and हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. So जो भी होता है वो सब planned है पहले से. Emotions हमारे ups and downs होते रहते हैं. इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है. हमारा मूड भी ऊपर नीचे होता रहता है. But all these things are already planned from above. It has to happen. आप कुछ नहीं कर सकते. आप बस सोच सकते हो, आप खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, बट जो होना है वो होगा ही. You need to accept that I'll give my best, I'll do everything that I can, but अगर वो होगा कि नहीं होगा उसमें मेरा कुछ से नहीं है. जो अगर होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा. And yeah, so on that note, I will end this video here. I'll end this episode here. I hope you liked it. I hope it made you feel better. I hope it healed you in some way. And if it did, please let me know in the comment section down below. And I'll see you again in my next one. Till then, bye.